السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہم اپنے شو میں وقتاً فوقتاً انتہائی اہم سوشیو اکنامک ایشوز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں جو بظاہر غیر اہم ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی اہمیت حد سے زیادہ ہوتی ہے. الیکٹرانک ویسٹ کی پاکستان میں بھرمار انہی ایشوز میں سے ایک ہے جس کی طرف فی الحال حکومت وقت کا دھیان بھی نہیں گیا، ہمارے دانشوروں کا بھی اور نہ ہی میڈیا کا. افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی اس مسئلے سے ناآشنا ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ الیکٹرانک ویسٹ دراصل ہے کیا. ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے الیکٹریکل اور الیکٹرانک ڈیوائسز، گیجٹس دن بدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. 6 ماہ کے اندر اندر نئی جنریشن آ جاتی ہے، پرانے ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، یوزلیس ہو جاتے ہیں. اور ویسٹ کا تو یہ اسلوب ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اگر 10 دن بھی پرانی ہے تو وہ اسے متروک قرار دیتے ہیں، اسے خریدنا یا استعمال کرنا باقاعدہ کسر شان سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال 4 کروڑ ٹن کا الیکٹرانک ویسٹ پیدا ہو جاتا ہے، جسے تلف کرنا انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے. یہ بڑے ممالک چالاکی یہ کرتے ہیں کہ سستے داموں یوزڈ ریفربشڈ کمپیوٹرز، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر لاتعداد الیکٹریکل اور الیکٹرانک گیجٹس ہم جیسے ممالک کو بیچ دیتے ہیں. اور یہاں کی بے وقوف حکومتیں چپ سادے بیٹھی رہتی ہیں، نہ قانون سازی کرتی ہیں، نہ اس ٹریڈ کو ریگولرائز کرتی ہیں. چائنا اور انڈیا میں اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے. اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ کروڑوں روپے سالانہ ضائع کرتے ہیں. یہ یوزڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس خرید کر لے آتے ہیں، اس میں سے 15، 20، 25، 30% چیزیں، پرزے نکال کر باقی سارا تلف کر دیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، جو بذات خود ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ بنتا ہے. انتہائی زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے اس میٹیریل کے جلنے سے. آج اس حوالے سے ہم نے محکمہ ماحولیات کے ڈمی وزیر اور سیکرٹری کو دعوت دے رکھی ہے. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ یہ اللہ دا بڑا شکر ہے، احسان. تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ اور سر اصل میں چوہی صاحب تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہیں جانے آنے میں. اس میں کیوں ہیزیٹیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ زیادہ تر ہارس اینڈ کیٹل شوز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو پتہ جی، یا کتےاں دی دوڑ تے جاندے نے جی، اوتھے چیف گیسٹ ہوندے نے. اچھا میں چودھری ہوں، میں کوئی تھوڑا رکشے والا نہیں ہے. رچ تے کتے دی بھیڑ بڑے شوق نہ ویکھدے نے. اچھا، رچ کتے لیٹ ہو جانے تے آپ ہی بھیڑ پیندے نے. کس کے ساتھ؟ کتے نال اور کدے نال. میں پٹھے آپ دی چپیڑ مارنی تینوں. اچھا جناب، الیکٹرانک ویسٹ کے بارے میں آپ دونوں کیا جانتے ہیں؟ اے جناب چوہی صاحب تم تو قیامت تک نہیں پتہ لگنا، میں نے آپ تھوڑا جتنا پتہ ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یقین کریں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سر یہ میں الیکٹرانک ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، یہ ٹریجڈی ہے کہ سیکٹری کو نہیں پتا، وزیر کو نہیں پتا کہ یہ ایکچولی مسئلہ کیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کے ایمبٹ میں آتا ہے، آپ کے محکمے سے متعلق یہ بات ہے. جناب میرا ڈپارٹمنٹ نا بڑا بہترین کام کر رہا ہے. کیا بہترین کام؟ بڑے پروجیکٹ لا رہے ہیں جناب. چنیوٹی پارک بنا رہے ہیں. وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوتھے چور صاحب پکوڑے لاؤن گے جی. خود لگائیں گے؟ جی ہاں. دیکھو چوہی صاحب نے کسی تے یقین نہیں، لہٰذا وہ ساری ٹیک کیئر چوہی صاحب آپ کرن گے. بلکہ بعض اوقات چوہی صاحب پنگوڑا خود بھی بن جاندے نے، اور ایڈا اچھا پنگوڑا بن ذرا چوہی صاحب پلیز بن کے دکھاؤ ذرا. میں رستے چ 4 بار اتن بن کے بخایا ہے. سر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور چیز ہے، الیکٹرانک ویسٹ اور ہے. سر آپ رنگ روڈ گئے ہیں؟ ہاں جی میں گیا ہوں. محمود بوٹی کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک پہاڑ بنے ہوئے ہیں کوڑے کے، وہ ہم لوگوں نے لگائے ہیں سر. جی ہاں جی ہاں، اوہدے چوں ثابت جوس لب جاندے نے جی، یقین کرو. 1.5 لیٹر دی بوتل لب جاندی ثابت گرما. اور چوہدری صاحب نے میں دھو کے کھوایا جی. چوہدری صاحب نے جڑی جُتی پائی تسی کہ سمجھے خریدی ہے، بچوں لبھی ہے جی. میں اتھے سونا وہ تو کھا کے لے آیا. پوری دنیا میں جہاں انہوں نے اپنی الیکٹرانک ویسٹ ڈمپ کرنی ہوتی ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ویسٹ یارڈ بن گیا ہے. تو اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، آپ کو کچھ پتا ہے؟ نہیں
तो सेक्रेटरी आपका है क्या? सर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? और आपका इंटरेस्ट क्या है? मैंने सोचा था मुझे हेल्थ मिलेगा, मैंने इसके लिए बहुत सी सिफारिशें भी करवाई, फिर मैंने कहा चलो मुझे CNW ही दे दें, लेकिन नहीं। ਓਏ ਬੁੱਟਿਆ ਜੀ ਆਖਾਂ ਓਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ? ਆ ਨਾਇਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਐ ਛਾਣ ਬੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। अच्छा जी, आपने इसका हलफ उठाया ना? ਉਠਾਇਆ ਜਨਾਬ। तो आपको पता था कि महकमा क्या है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ नहीं ना। डॉक्टर साहब आपको तो ये तक नहीं पता कि ये आपके महकमे से मुताल्लिक है, इससे वाकई नुकसान होता है। किस तरह जी? ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, बताइए हम जैसा। वजीर मोहतरम आपको याद होगा पुराने टीवी कितने बड़े हुआ करते थे। ਤੇ ਚੌਰੀ ਆਪ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਬੜੋਲੇ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਆਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜਨਾਬ। फिर LCD टीवी आ गए, उसके बाद LED टीवी आ गए हैं। ये LED टीवी पुराने टीवी की निस्बत 5 गुना कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क आपके नेशनल लेवल पे पड़ेगा। जब आप सब चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो आपकी लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਰੀ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਹੈ। जैसा मेरी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं CNW जाना चाहता था। और क्या CNW करप्शन करनी थी वहां जाके? यस सर, करप्शन करनी थी और क्या करनी थी वहाँ पर आपने। नहीं, ये भी मैं नहीं मानता। CNW में जो जाता है जरूरी नहीं कि वो, मैं ऐसे ऐसे सेक्रेटरीज को जानता हूँ जो बेहतरीन ऑफिसर्स। वैसे चौधरी तेरी शक्ल तो नहीं लगता तो वजीर है। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि इस मसले का, क्योंकि ये अपनी नौयत का बिल्कुल नया मसला है, तो क्या हल क्या है इसका? फौरी तौर पे एक तो कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सर जो भी इम्पोर्ट हो रही है उसको चेक किया जाना चाहिए कि आया वो स्क्रैप है या वाकई सेकंड हैंड चीज़ है। जब तक आप चेक नहीं करेंगे। अब जो स्क्रैप आता है तो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड हैंड है, नहीं वो सर। नहीं होता तो उसे काबिल अमल बना देते हैं। जैसे स्क्रैप एक डिफरेंट चीज़ है, स्क्रैप को स्क्रैप ही बिकना चाहिए। यहाँ पे स्क्रैप की चीज़ जो है वो तो सेकंड हैंड बिक रही है, और इसके SOPs तय होने चाहिए कि जो लोग इस बिज़नेस में हैं, अभी तक ये बिज़नेस मादर पिदर आज़ाद है, इस बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इस पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा जी, होता ये है कि ये स्क्रैप के भाव लाते हैं, बराए नाम ड्यूटी होती है ना होने के मुताबिक, उसको फिर रिफर्बिश किया जाता है, और वो ड्यूटी जो कई गुना ज्यादा हुकूमती खजाने में जानी चाहिए वो इनकी जेबों में जाती है। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? क्यों अब मुझे रखना है सेक्रेटरी? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। मुझे सेक्रेटरी रखना है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? अच्छा सामान इलेक्ट्रॉनिक का मंगवाता आलू है। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। और करोड़ आने वाले तुमको पता है कुछ करोड़ रुपए का कारोबार है, करोड़ रुपए का। ये पता क्या करता है? क्या सर? ये यहीं से गली मोहल्लों से इकट्ठे करता है टूटे फूटे कंप्यूटर्स और शो करता है जी मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ रिफर्बिश्ड। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ जी, कौन? ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, अच्छा, ਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪੇ। Hey man, what's your problem? No worries, no problem. और ये अंग्रेज तो के गल करे तो मेरे फड़ लेना। अच्छा तो ये सब कुछ मंगवाते हो, ये जो एक मेज पे पड़ा है? ऐ तो कुछ भी नहीं, वेयर हाउस असल पीछे वे गोदाम भरे हुए ने, वे को जाके। ओए होए, अव्वल तो ये झूठ बोल रहा है, गोदाम शुदाम कोई नहीं होंगे, ये 2 नंबर आदमी है, और अगर ये मंगवा भी रहा है ना तो बेड़ा गर्क कर रहा है। वो स्क्रैप यहाँ पर डंप कर रहा है जिसे पूरी दुनिया कोई कबूल करने को तैयार है। ये बताएं कि आप वारंटी क्यों नहीं देते अपनी चीज़ों की? कोई पता साबित कर दे मैं वारंटी नहीं देता। सर दरअसल करते ये हैं कि चीज़ें बेच देते हैं, उनमें से जो क्लेम आता है उससे फिर निगोशिएट करते हैं उस शख्स से, उनसे पैसे तुड़वा लेते हैं और किसी को देते हैं किसी को नहीं भी देते। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे ये बताएं आप कितना टैक्स देते हैं? कौन है आप। उस टैक्स किने देना है? हजूर इतनी इनकम होवे तो बंदा टैक्स देता है। तो ये जो पीछे पूरा वेयर हाउस खोला हुआ वो है वो? सारे जो भी कुछ नहीं, वो भी एम ही है, बस इतने लोगों की खिदमत कर अच्छा रहे ये हैं। कौन है ये जो चल फिर रहा है? ये क्या मनहूस सा आदमी? वो तो खड़ोदा करे कुछ चपेड़ा खानी है मेरे को। Hey, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ। बड़ा तेरा गरमाले वर्गा मुंह है। Yes, yes. Okay. ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜ ਘਟਾਉਣ ਆਇਆ।
यार ये दोनों कौन है? आई एम अमेरिकन मैन, अमेरिकन। और मैं जड़ा वाले सर ये जुल्म भी करते हैं कि चाइना की चीज पर यूएसए का टैग लगा के उसको भेज देते हैं। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। नहीं वैसे वाकई शर्म की बात है कि यूएस का टैग लगाते हो चाइना की चीजों पर। सर जो चाइना ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, यूएसए ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? अच्छा ये कहाँ का है, अमेरिका का है कि चाइना का है? बाबू जी कंप्यूटर की दुकान तो दम कराना है मेरे को। सर इस जैसे लोग जो हैं उन्होंने बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है कि आप स्क्रैप जलाएं, प्लास्टिक जल जाएगा, जिसमें से लोहा या उसमें से तांबा निकलेगा, आपको उसके बस पैसे दिए जाएंगे। और बच्चे अगर मैं तेरी गल एक मिनट भाजी, एक मिनट मैं तेरी गल दसा, मैं तेरे लम्बे पाले तो मैं कुटना ही, मैं नहीं हूं तेन रिसर्चर बना। तो मुझे क्या मारोगे? मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया कैंपेन लॉन्च करूंगा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਫ ਹੀ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ। क्यों साहब? बड़े बड़े ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ, बड़े बड़े ਵੇਖੇ ਤੇ मैं। यार बात सुने, आप जो बैठे हुए हैं आप अंग्रेज हैं? उन्हें तो मैं की जवाब देवां? कोई सवाल है सी? इतनी देर मैं अपने आप को ढक के बैठा रहा ना, तो मैं जानता या मेरा अल्लाह जानता है। पहलू अंग्रेज भी स्क्रैप निकला है जी। तो बात सुनो, इसने तुम्हें अंग्रेज बना के बिठाया हुआ है? तो होर तुहानू की लग रहा है चुड़ेला बैठी हैं? ये करता क्या है इससे? भाई जी इन्हें सानू दिहाड़ी ते रखा है, मैनू तो इसको सिर ये किधर गया है? 250 रुपए देंदा, सवेरे अंग्रेज बना के थे बिठा देंदा, असी शाम तक अंग्रेज ही है। अल्लाह दी कसम साडा ढोलक वाला बाहर बैठा जे। वैसे तो असी मौत दे खूह ते नचदे हैं। तुम्हें फोन बार बार कहाँ से आ रहा है? सारे ढोलक वाला कर रहे होर मैनू डीसीओ दा फोन आउणा जे। तो क्या करता है? वो कहता बाहर आओ फंक्शन ते चलिए। सर इसके खिलाफ मैं सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करूंगा, इसकी 2 नंबर के खिलाफ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? जितने भी देते तुम्हें इससे क्या गरज है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ओ खुसरे मैं तो मोटरसाइकिल चलाना उत्थे। ये ते 2 गाने तो बाद फिर मेरा आइटम होंदा है उत्थे, तुम्हारा एटम जो है वो मोटर बाइक है। मोटरसाइकिल दा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा कभी गिरे भी हो? ਉਹ ਸਰ ਡਿਗੇ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਹੋਇਆ। आफ्ताब साहब मुझे इन पे बहुत गुस्सा है, मैं चाह रहा हूँ इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस के अंदर। आप सबसे पहले तो इनके यहाँ कैमरा भेजिए। देखो भाई पिछू अन्ने वाह हमले करी जा रहा है। ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤੜੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਾਤੇ ਬਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। सर मुझे मेरी गल सुनो, और दिन बना करा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की वेयर हाउस पर लिए चलते हैं जहां पर ये शख्स चोर बाजारी लगाए हुए हैं और लोगों को लूट रहा है। वो ठीक कह देखिए रहे मैं हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, हाँ जी, जो जी, ये जानना आप चाहती हूँ। नाकाबिले इस्तेमाल किस्म की चीजें बैरून मुल्क से मंगवाते हाँ जी, हाँ जी। हैं, उन्हें रिपेयर करके आप आवाम से महंगे दामों जो है उनको बेचते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? थक जाओगे, बह जाओ जरा। देखें प्लीज आप चुप रहिए। मैं कह रहा जरा बह जाओ। ओ खुसरा है, मैं नहीं हाँ। मैं तो मोटरसाइकिल चलाना, मैं बाइज्जत आदमी हाँ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ। आओ ना बैठो जनाब, बैठो जरा इत्थे बैठो। ਉਤਰੋ ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਠੰਡੀਆਂ ਜल्दी। अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए आप एक जर्नलिस्ट को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन आपको बताऊं कि ये जिन सिफत इंसान जो मासूम बच्चों से ये स्क्रैप का माल जो है ये जलवाता है, अच्छा और यहाँ उसके बाद इंटरव्यू कर ला तो यहाँ चुगता कर ला, ठीक है? तुम पर तो चाइल्ड लेबर का भी मुकदमा होना चाहिए, गेंडे। क्यों जी? दूसरी ऐसी कोई इंटरव्यू जी दूसरी जुगत जे। मैं इधर हो जाऊँ किधर मेनू मगरमच्छ ना कह देवे। अच्छा सर कोई सादा लैजिस पर ही सवाल करो जुगत तो बगैर। मेरा तुमसे सीरियस सवाल है और सीरियस जवाब देना कि तुम जाली वारंटियां क्यों देते हो आवाम को, किसी आबदोज के बच्चे। तीसरी हुई जनाब अली। जी एंकर जुगत बेस से भर्ती हुई। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिन मुलाजमों को आपने अपने पास काम पे रखा हुआ है उनको आप क्या सैलरीज देते हैं? क्या डेली वेजेस पर उनको रखा हुआ है या क्या उनको मंथली पे करते हैं आप? ते जुगत किथे गई? ये जो आपने अपने साथ 2 बहरूपिये रखे हुए, मैं इन पर भी मुकदमा चलाऊंगी। यकीन जानो बेरूपिया ओ है, मैं तो हाँ ही हो गया। मेरी तो अम्मी रोमानिया दी आई। मैं तुमसे
तुमसे जानना चाहती हूँ अब तक तुमने कितना टैक्स पे किया है, एटम बम के बच्चे। ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਂਡਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 200 ਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਮੈਂ ਜੁਗਤ? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ इस कारोबार का लाइसेंस है तुम्हारे पास? कद्दू सिफत इंसान मैं समझे हो सकता बच्ची ना आई हो जुगत सवाल तो खाली ना जाएगा। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਭੰਡ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਜੁਗਤ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲਓ ਹੈ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनों रात हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। इसमें आज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको फिल्म मंगोल से। सर मंगोल फिल्म? हाँ जी, मंगोल जो चंगेज खान था, वाह, मंगोलों का हीरो। तो इस हवाले से हमने आज मेहमान बुला रखे हैं इस कहानी, इस दास्तान के दो मरकजी किरदार, तमूजन उर्फ चंगेज खान और उसका मुंह बोला भाई जमोका। जी क्या हाल चाल है आपका? ये चंगेज खान है जी? तुम्हारा क्या ख्याल है इन दोनों में से चंगेज खान कौन हो सकता है? दोवां चो कोई भी नहीं लग रहा। ये लगता गटर खोलना है। ਇਹ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਗਾਲ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਓ ਆਦੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਬੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਟਰ ਖੋਲੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सर नाल ਇਹਦਾ ਵਿਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ? ਜਮੋਕਾ ਜੀ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਇਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਯਾਰ ਕੋ ਗਾਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। सर चंगेज खान तो बड़ा स्मार्ट आदमी सी, एक ही संडा या बुला लिया तुसी। हीरो है बहुत बड़े, मंगोल ट्राइब का सबसे बड़ा हीरो चंगेज खान। और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के चंद अजीम तरीन फातेहीन में शामिल होता है। मेरा ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा हीरो, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बड़ी अकीदत रखता हूँ चंगेज खान से। सर ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। नहीं मेरा ही नहीं बनता, हर उस शख्स का बनता है जिसने तारीख पढ़ के इसका कैरेक्टर एनालाइज किया। ਤੁਹਾਡੀ ਉਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? अच्छा जी, ये फिल्म सन 2007 में रिलीज हुई थी। ये दरअसल रशियन फिल्म है जिसका ताल्लुक किसी हद तक कजाकिस्तान से भी है, मंगोलिया से भी है। एक जर्मन कंपनी और रशियन कंपनी ने मिलकर ये फिल्म बनाई थी। अगले साल इसे नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को जो शख्स एक दफ़ा देखेगा, तारीख़ का तालिब इल्म अगर वो है, तो वो एंजॉय किए बगैर नहीं रह सकेगा। हालांकि एक डायलॉग भी अंग्रेजी में नहीं है, ਸਰੈਕੀ 'ਚ मंगोल जबान में है। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। मुझे नहीं आती, सब टाइटल के साथ चलती। ਸਰ ਤੇ ਹਲਾਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ? हाँ जी, उसका दादा परदादा था। ਤੇ ਹਲਾਕੂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ नहीं ਸੀ? वो मैंने कब कहा कि वो अच्छा आदमी? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ये तो बहुत बड़ा आदमी था, वो तो इसकी खाके पा भी नहीं था। ਹਾਂਜੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਰ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। और तुमने उसके साथ फिर जंग लड़ी थी। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀਰੇ। सर ये भाई किस तरह बने थे? ये मुंह बोला भाई था, सगा भाई नहीं था। एक दफा जब बेचारा तगोदौ कर रहा था, कैद से फरार हुआ चंगेज खान, तो ये बर्फ पर ऑलमोस्ट मर चुका था कि जमोका ने इसको बचाया था। तो यंग थे उस वक्त, दोनों ने वादा किया कि हम दोनों आज से भाई हैं, एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, हम ब्लड ब्रदर्स हैं। ये अपना खून एक मशरूब में डालते हैं दोनों, अच्छा, और फिर मिलके पीते हैं। ਇਹ ਜਮੋਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਸਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ये जंग वैसे होनी नहीं चाहिए थी, टेक्निकली स्पीकिंग। मैं यहाँ पर कसूरवार अपने हीरो को करार देता हूँ। ਜਮੋਕੇ ਕੋ ਸਰ? जमोका मेरा हीरो हो सकता है, पागल तो नहीं। ਜਮੋਕਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚੂਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ। ये हमाकत की थी इसने और बाल बाल बचा था, क्योंकि वो जंग ये हार गया था, जो बड़ी जंग थी, बहुत बड़ी जंग।
इसको मारा नहीं था जमोका ने, बेच दिया था स्लेव बना के। लेकिन जब आखिरी जंग जमोका को इसने शिकस्त दी, उस वक्त इसने उसको माफ कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इसके साथियों ने कहा कि तुम अपने दुश्मन को छोड़ रहे हो। उसने कहा मैं अपने भाई को छोड़ रहा हूं। वाह 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 वाह। और फिर इसका बर्ताव अपनी बीवी के साथ, बोरताई एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ना चाहते हो वो बोरताई का कैरेक्टर बहुत एंजॉय करेंगे। कहानी का आगाज ही इससे होता है कि 9 साल का होता है तो अपनी दुल्हन सिलेक्ट कर रहे अपने बाप के साथ जा रहा होता है। वो ट्राइबल सिस्टम था, उसमें यही रिवाज होता है कि बच्चा खुद पसंद करता है। तो 5 साल बाद फिर इनकी शादी हुई, तो उसे बहलाता फुसलाता रहा कि यहाँ ना करो, दूसरे ट्राइब की लड़की के साथ शादी करो। लेकिन ये मुसर रहा कि मैंने इसी ट्राइब की लड़की के साथ शादी करनी है। सर इसके बाप ने भी लड़की भगा के शादी की और इसने भी यही काम किया। ये टोर के लै गया उन्होंने, देखो कितने बजनी है कुड़ी। नहीं, इसने तो अपनी मंगेतर के साथ शादी की थी ना, थी इसकी मंगेतर, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इसको उसके साथ इलोप करना पड़ा। सर चंगेज खान ते इल्जाम है कि इन्हें नसाई है, वो तो उन्हें वेख के दौड़ गई सी। ये तो सगों दे पीछे दौड़ रहा सी। और ये जमोका बहुत लाजवाब तीर अंदाज था। सर जमोके दी भी शादी हुई है, तीर तुक्के ते गुजारा कर। सर जंगे चित्तौड़ भी नहीं लड़ी है। ओए जंगे चित्तौड़ अकबर ने लड़ी थी। सर शक्ल तो ये चित्तौड़ वर्गी है। मतलब तू मेरे को दूर निकते को दसा के जंगे चित्तौड़ किवें होंदी है। ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा तुम बोलते किस तरह हो? ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। सर जमोके को भी कोड़ा सी साइकिल ते आਉਂਦਾ। इसका दुश्मन इसकी बीवी को, बोरताई को उठा के ले गया। अच्छा ये गाल ना करो तो कोई बिरादरी जनाती नहीं। फिर जब इसने अपने दुश्मन को शिकस्त दी, उसको कत्ल किया और बोरताई को लेकर आया। उस वक्त बोरताई को उसने अपनी बीवी बना के रखा हुआ था और वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसका बच्चा, ये जानते हुए भी कि ये उसका बच्चा है। लेकिन इसने ना सिर्फ उसकी बड़ी आओ भगत की, बल्कि उस बच्चे को आंख का तारा बना के रखा। उसका नाम इसने योजी रखा था। योजी मेहमान को कहते हैं। सर कोई ऐसी जंग जिस बोरताई ना चुकी गई हो तो सर फिर इसने उसको माफ कैसे कर दिया? उसके दुश्मन की बीवी बनी रही। इसलिए कि इसने जो डायलॉग था उसके साथ वो लाजवाब था। वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो तारीख की किताबों में मिलता है। उसने कहा कि ये जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर मेरी कमजोरी का है। अगर मैं कमजोर ना होता, मेरा दुश्मन तुम्हें उठाकर ना ले जाता, और तुम कोई बड़े शौक से नहीं उसके साथ गई थी, लेकिन चूंकि तुम्हारी लिखी मेरे साथ थी तो इसलिए तुम वापस मेरे पास आ गई हो। और मैंने तहिया कर लिया कि आज के बाद कभी ऐसी वीकनेस का मुजाहरा नहीं करूंगा कि मेरे खानदान को, मेरे मुल्क को, मेरे कबीले को खतरा हो। जंग तो बाद चंगेज खान ने ऐलान किया सी क्या कि भाई जंग अपनी जगह, लेकिन ये बीवी वाला मजाक अच्छी गल नहीं। सर इन्हें मैं चंगेज खान मान लिया, मेरे को जमोका हजम नहीं होने दिया। अच्छा वैसे मुझे इसके गेटअप से बड़ा इख्तलाफ है। क्यों? जमोका गंजा था बिल्कुल। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सर इनके दौर में ततारी भी थे, यही तातारी थे। यानी मंगोल ततारी होंदे ने। मंगोल ही तो तातार्स थे, टार्टर्स। जेड़े ते कहीं गाल दा नहीं पता क्यों बकवास करे थी बेटी। ओ ते ततारी सन, तू ढारी लगन दे हैं। मैंने कुछ नहीं पता क्या है, ये मेरा भिरा है, मैं इधर कहीं भी जंग न लड़ा। यानी आप इसके साथ कभी जंग ना लड़ते? जी फिर क्यों लड़े? हे मेरे को मारे। क्या मारे मेरे को? अल्लाह जान दे मेरे को एन कुत्ते ने मैं दसा नहीं सकता। बोल किस तरह है? चंगेज खान हो तुम। हाँ तो जेड़े ले कोट पौंदी ये में बंदा बोले मैं ईमान में एक मिनट मैं दिखे मैं नहीं देखना। मैंने अल्लाह का नाम यार नहीं देखना। चंगेज खान की गाल तो सुनो यार। नहीं केड़ी शहर चंगेज खा जाता है। तो दिनों रात ये गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद रात ब्रेक से पहले इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी तमोजन और जमोका के साथ। हम वहीं से मेरे हक में मैं दिखाऊंगा। ओ यार मैंने नहीं देखना। क्या है कि मेरी यार 5 महीने इश्तिहार चल गए, मैं उठाई बैठा। पता नहीं गाल ये थोड़े जे
पीले आई था जेड़े पीक दाई ना नशे थी कबाल में मरे ना ये लगता तो नहीं है सुखी सड़ी सी चीज लगी ना वो वेले दे जेडी ताकत होती है शर्म करो चंगेज खान हो तुम कोई शक नहीं मेरी चंगेज ही बन के तेना ही चल छड़ दे शो ते आया कि पेके ते आया सर चंगेज खान से कोई फंक्शन ना रख ले चंगेज खान ने ड्रेस केड़ा पाया है सर ड्रेस यही था उसका ये चंगेज खान ते तेरी फुप्पी दा है कोई ऐसी मशहूर जंग तो पदर को एक जंग होवे ते कोई सा अच्छा फरार बहुत होता था ये बड़ा माहिर था और आखिरी फरार वो बहुत लाजवाब था और उसमें इसका कमाल नहीं था बोरताई का था बोरताई भेस बदल के गई बोरताई दिहाड़ियां लाउंदी और दुश्मन को 30-3500 इकट्ठा कर ला नहीं वो एक बहुत अमीर औरत बन के गई और उसने दारोगा को अपने साथ मिलाया उसको रिश्वत दी और रात को इसे फरार करवा दिया इसका जेल में टाकरा हुआ था एक राहब के साथ एक प्रीस्ट था बुद्धिस्ट मंक था उसने इसे कहा कि मैं पेशगोई करता हूं कि तुम यहां से निकल जाओगे तो उसने कहा जब तुम यहां से निकलो तो हमारी एक इबादत गाह है उसे तबाह मत करना क्योंकि तुम हर चीज को ताख्तो ताराज करते चले जाओगे तो ये भी बड़ा सियाना था इसने कहा निकल तो मैंने वाकई जाना है ये तुम मुझे कोई इत्तला नहीं दे रहे हो तुम एक काम करो ये एक हड्डी देता है उसको हड्डी एक कांटा होता है जिस तरह उस तरह की हड्डी होती है कि ये तुम बोरताई को दोगे बोरताई तक ये पहुंचा दो ताकि उसे समझ आ जाए कि मैं जिंदा हूं वो फिर बेचारा बहुत दूर तक जाता है और इसी तगोदो में अपनी जान दे देता है लेकिन बोरताई तक वो हड्डी पहुंचा देता है उसके बाद फिर बोरताई आती है इसको बचाने के लिए सर तो फिर उसने वादा पूरा किया या यस उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने सब कुछ तहवाला कर दिया लेकिन उस इबादतगाह को उसने छेड़ने नहीं दिया कि ये मेरा वादा है अच्छा जी तैमूर के बारे में आपका क्या ख्याल है तैमूर तो एक फजूल आदमी था मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता फातेह इससे बड़ा था वो उसे तो अर्थ शेखर कहते थे उसने तो वो तो वाकई जमीन हिला देने वाला कैरेक्टर था इससे बड़ा बादशाह था लेकिन इससे पस्त इंसान था इससे छोटा आदमी था और पागल था ये तो बहुत ज़हीन बहुत सियाना बहुत समझदार आदमी था उसकी सेंसिबिलिटी एक फातेह की सेंसिबिलिटी थी और हालांकि उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं उसने अपनी औलाद को जो मशवरे दिए उनमें से एक बहुत कमाल की चीज़ ये थी कि कभी शायरों अदीबों और दानिश्वरों के साथ पंगा ना करना क्योंकि ये तुमसे डरने वाले नहीं जो शख्स तुमसे डरेगा नहीं तुम उसे कैसे शिकस्त दोगे अब ये इतनी बड़ी बात थी कि वाकई शायर अदीब फनकार लिखारी दानिश्वर ये कहाँ डरते हैं तो सर तैमूर ने गलती क्या की तैमूर ने लाखों आदमी सिर्फ ऐसे ही कत्ल करवा दिए और मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान था उसके बारे में बहुत क्लियर हिस्टोरियंस लिख चुके हैं कि वो बिल्कुल मुसलमान नहीं था नाम का मुसलमान था सर ये मुगल शोर में जानते हैं कि हम तैमूरी खून हैं ये कौन सा मुगल कहाँ से निकला है मंगोल से अरबी में मुगल को कहते हैं जमोका भी मुगल है जी जमीके ने भी शादी की थी सर जमीका जबोका काड़े दे कोड़ा जबोका वो जबोका है ये जमोका जबोका भी उखाड़ी चाहिए जी हाँ जी जबोका एक किस पास है सर ये कोहला की तरफ बामा बाला चूचक की तरफ जंदराका की तरफ वाह ये सारे इलाके उकाड़ा के ये पक्कियां लग रही हैं फक्कियां पुत्र उधर जा तेरा फक्का मार जाएंगे तू जानदा नहीं उस इलाके में वीरे वो कोई जंग जुंग लड़ी है या जंग मंगी है तुम कई तकलीफ क्या है मेरे को साथ सही चंगेज खान तू की बकवास करी जा रहे हैं मैं तो समझ सी बड़ा कोई अच्छा कैरेक्टर है ये सर्कस का चंगेज खान है असली चंगेज खान नहीं है ओ यार सर्कस दा रेछम है सर्कस दा चंगेज खान केड़ा होंदे ये असि सैंडू है बांदे रहे असि अपना जख्मी साहब हाँ जी की गल है तुम तमीज का नहीं तमीज से बात करो तुम्हें किसी ने बताया नहीं तेन पता है बोरताई दे मामू ने जब भी उठते हो कमजोर आदमी को देख के उसी तरफ बरस पड़ते हो चंगेज खान भट्ट साहब ये चंगेज खान हमें क्या समझता है हम भी जमाने में रहते हैं इंसान है जख्मी ने भट्ट साहब को चपेट काट
خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. اس کے اندر یہ جو بلیک اسکارپین ہے, کالا بچھو, جی جی, اس کی زہر سے, اس کے وینم سے یہ ویکسین بنا رہے ہیں ایڈز کی, اور ایک بچھو سے 25,000 انجیکشنز بنتے ہیں. واہ, تے جے بچھو نو ایڈ ہوئے تھے. سارے بچھو لب دے کتھوں نے؟ تلاش کرنے نا نکل کھڑے ہونا. یہ سندھ میں بہت ہیں. اچھا جی, بہت تو نہیں ہے لیکن وہاں پر موجود ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں نا ان علاقوں کے, انہوں نے اپنے ملازمین کو اس کام میں جھونک رکھا ہے کہ پرانے قدیم کھنڈرات میں جاؤ, کنوؤں میں جاؤ, تلاش کرو. یہ پھر لاتے ہیں اور انگریزوں کو بیچتے ہیں. پہلے اس کا ویٹ کرتے ہیں, وہ وزن کے حساب سے دیر اینڈ دن پیمنٹ ہوتی ہے. میں کئی سیاسی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کام بڑی شدومت سے کر رہے ہیں. سر بٹ صاحب نے بچھو پڑے ہیں. سر ساڈے پیچھے نیپال اور سوڈان کے وزیر بٹھائے. یہ تو زخمی صاحب نے, یہ شدید زخمی نے. بٹ صاحب ہیں بہت غصے والے. سر بٹ صاحب بڑے نائس آدمی. بٹ صاحب بڑے ذہین و فتین آدمی ہیں, فوک وزڈم کا سمبل ہیں. تو وہ سر ہم بات کر رہے تھے بچھو کی. سر یہ بچھو سانپ سے بھی زہریلا ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اس نے جی. بچھو دوائیاں چ بھی پیندا سر؟ تو یہ تم ابھی کومے میں تھے جب بتا رہا تھا میں. یہ کچی لسی بن دی دسن تے دین. اس کی فلمیں بھی بنتی ہیں. اسکارپین کنگ بڑی مشہور ہے. اس کا استعمال صدیوں سے چلتا آ رہا ہے بطور نشہ بھی لوگ. یہ ایک فلم تھی انڈین, بچھو, اس کا نام ہی بچھو تھا, بابی دیول کی تھی. اس میں باقاعدہ اس سے سٹنگ کروایا کرتا تھا. سر اپنے زخمی صاحب نے بھی بچھو رکھے ہیں. وہ انہاں کو سٹرنگ کراؤندا سی. سر یہ بچھو کو عربی میں بھی کچھ کہتے ہیں خاص؟ اقرب. اقرب. انہاں نوں پھر واپس دبئی لے جاواں. اسی اینی دیر تے بیٹھے تے ٹھواں بچھو وہ گلاں ہوندیاں ہاضا. یہ ہاضا تم ہو کون؟ اے دبئی دا رکشیال ہے جی. بھائی جی, یہ 2 میاں بیوی مجرم پھڑے نے. میں اے 2 میاں بیوی دبئی چ منگدے ہیں, میں انہوں نے اتنے لے کے آیا ہاضا. تو آپ باقی رکشے والے؟ اچھا میں رکشے والا لگ رہا تمہیں؟ نہیں, اس میں نے کہا شورتا ہاضا. اصل میں بات ہوگی یہ کہ میں اور میری جنانی ہم دونوں گئے دبئی, ویسے سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے وزٹ ویزے پہ. جب وہاں پہنچے تو ویزا ہوگا ختم. تو پیسے تو تھے نہیں, 10 درہم روزانہ جرمانہ لگا میں ہے. نہیں تو کیوں وہاں پہ اتنی دیر کیوں رہے, واپس کیوں نہیں آگے؟ بیوی ویک نہیں سی رہی. مانگنے والوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. آفتاب مجھ سے مانگتے ہیں, حالانکہ منگن والے کو منگنا لانتیاں دا کام ہے. جڑے صحت مند ہٹھے کٹے جڑے بنے نے اور سڑکاں تے مارکیٹاں جی ایک بہت فضول لوگ ہیں وہ. میں سمجھتا ہوں انہیں اسی وقت گرفتار کرنا. سر گورنمنٹ کی کر رہی ہے انہاں واسطے؟ کچھ بھی نہیں کرتی. انہاں لوگوں کو روکے کیوں نہیں روکتی انہاں نوں؟ بٹ صاحب دے اگے بیٹھے اسی منگن والے لگے. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ. سر انہوں نے گل ہاسے ٹال دیتی ہے, گل سیریس ہو رہی ہے. سر ساڈا بینچ تھوڑا اگے ہو سکتا ہے. وہ تانوں کی مسئلہ ہے؟ بٹ صاحب مارنے سے اسی ہے رکھے ہیں. اللہ کا شکر ہے بابا ادھر نہیں بیٹھا ہاضا. سارے نو حاضہ تو بعد کچھ نہیں آندا اگے. اچھا, یہاں کے گداگر نہ صرف مانگتے ہیں بلکہ جرائم بھی ان کی وجہ سے پنپ رہے ہیں. سر اتنے ایسے جا باتیاں نے چنگڑاں دیاں جنہاں دے مرد گھراں وچ بیٹھے نے اور عورتاں منگنیاں نے, نال چوریاں چکاریاں کردیاں نے. صحت بات ہے, چوریاں چکاریاں زیادہ کرتی ہیں, مانگتی تو ہیں, یہ چور ہوتی ہیں یہ جو. اور سر اپنے بچیاں نوں ٹیکے کو بیہوشی دے کی لگایا تے 8-10 گھنٹے چولی چ پائے نے. بٹ صاحب تانوں کام کو مکوئے نہیں, تسی چنگڑیاں پیچھے پھرتے رہتے. یار تو چپ نہیں ہو سکتا. سر تہاڈی مہربانی مینوں اپنے کو بٹھا لو. اچھا بٹ صاحب مینوں نہیں پڑھنا, میرا پیپ ٹوٹ جانا جی. سر جدوں تک انہاں نوں سرعام پھانسی نہیں ہوئے گی یہ کام مک نہیں سکتا. کس کو؟ سر ساڈی گل ہو نہیں ہے. سر وہ مانگتے نہیں, اسی نہیں. بٹ صاحب یہ شکلاں تو چنگڑی لگن دے کہڑے ایس ٹی او لگ رہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جعلی فقیر ہیں, جعلی گداگر, ان کو جب تک سزا, اور اصل سزا کے مستحق ہیں ہمارے حکمران.
जो इस हवाले से कुछ कर ही नहीं रहे, हालांकि कानूनन जुर्म है ये। चलो तो बाबे को कह दो कि सजाई को छोटी कर ले। ये बाबा किस महकमे च हाजा? ये बाबा नहीं है, बड़ा जवान आदमी है, पहलवान है वो। है जी? नहीं वो तो मैं ते सानू ते दसो। ये जो अक्सर आपको यहाँ पर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये जो सरदाई मिलती है यहाँ पे, खालिस सरदाई, हाँ जी, वो भट्ट साहब लेके आते हैं किन्ने दा गिलास देंदे ने यार, फ्री पिलाते हैं सबको, खिदमत करते हैं सबकी। सरदाई पे आके ना बाजू कान पड़ा इन्हां दा बंदा ये भी नहीं कह सकता मिठा घट है हाजा। आफ्ताब साहब हर गल का मजाक करते हैं, कोई गल भी तो नहीं सीरियस। आफ्ताब साहब को नहरों पार बैठे ना हौली ते बोलो। आफ्ताब, एक दिन के लिए हुकूमत मुझे दे दो, मैं ये गदागरी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। इन्हें मंगना ही इन्हें। अगर ये काम 10 मिनट में हो रहा है तो 23 घंटे 50 मिनट तुम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? वो इन्हें नहाना धोना। आफ्ताब साहब भट्ट साहब ने कोई समझाओ। और मुझे समझा रहे हो, हुक्मरानों को समझाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4-5 ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। 6-7 ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। लो जी मैं तुम छड़ दिता बाबे को बच जाना हाजा। भाई मैं ऐसा क्यों नहीं बोले बाबा, क्या तुझे तकलीफ क्या? ए कोल आके कह रहा। अगर तुम भट्ट साहब के करीब फटक जाओ मैं तुम्हें मान जाऊं। दिमाग खराब हो रहा मेरा, कुत्ते ने काटा मैंने। भट्ट साहब ਦੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬਾਸਣ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ आफ्ताब साहब जब तक रवैया ठीक नहीं होएगा ये मामला ठीक नहीं होना ला। सर साड़ी इंश्योरेंस हो सकती। हुक्मरान भी मजाक कर रहे हैं और ये भंड भी। आफ्ताब साहब भट्ट साहब थानू बोला समझते। मैं बाबा जी आपसे वादा करूं, आज के बाद मैं नहीं मांगता। मैं तेरे वादे पे यकीन नहीं करता। चलो चलो। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।